Hello and welcome back to your channel Fake Safari. My name is Abhishek and today we are on to the ninth video lesson on the work energy. Well, in the previous video lesson I have discussed about the spring potential energy, and in today's video lesson we are going to do some really good examples on the spring and the block system where the work energy concept would be involved. I believe you have watched the previous video lesson. In case if you have not, then make sure to watch that video lesson before you jump into दिस पर्टिकुलर वीडियो लेसन। ऑल गुड बच्चों, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, और आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, मान लो कि वी हैव स्प्रिंग व्हिच इज इनिशियली कंप्रेस्ड। दिस इज कंप्रेस्ड एंड लेट्स सपोज दिस इज द मेन पोजीशन। दिस इज योर मेन पोजीशन। दिस इज द मेन पोजीशन। लेट मी राइट इट हियर। MP means main position. Well, it is compressed having mass m, spring constant is k. Let us say that it is compressed by a distance maybe a, it's compressed by a distance of a, let's say. Moment I release this block, the spring will get elongated and the situation should be like this. ऐसा कुछ होगा. But let us say that we have friction present between the surface of the block and the ground, and coefficient of friction is, let's say, mu. So we have friction present over here, and once we release this, let's say it get expanded, stretched by a distance of b. The question is very clear that during the compression it was compressed to a and expanded by a length of b, and since we have the friction present over here, that clearly means that a will be more than b. अगर friction नहीं होता, if there was no friction, then the compression and the elongation should have been equal, but since we have the friction present over there, the elongation will not be as equal to the compression. वो हमेशा थोड़ा सा कम ही होगा. Reason: friction will consume certain amount of energy. Friction is a non-conservative force. That means it will dissipate the energy. ये मैकेनिकल एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इतनी बात आपको पता है ना. नाउ यू हैव टू फाइंड टू पार्ट्स ऑफ दिस. फर्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. दैट्स पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 2, during this process of elongation from this compressed state, the spring is going to do certain amount of work. You have to tell me, find the work done by the spring. Find work done by spring. Find work done by spring. Now I would like all of you to pause the video and give it a try, और तब तक वीडियो अनपॉज ना करना till you feel कि okay this is the maximum thing which you can do, और या फिर आपको सही आंसर ना मिल जाए. Please pause the video and then you try, और अनपॉज तब तक नहीं करोगे जब तक आपको लग जाए हाँ मैंने अपना पूरा ट्राई दे रखा है. 2 reasons for that. You will definitely be utilizing your brain. आपको सोचने की इसमें थोड़ा सा एक आपका जो लेवल वो बढ़ेगा. दूसरी बात, in case if you having some wrong concepts, दिमाग में कुछ है जो कि आपको सही लगता है, वो करेक्ट हो जाएगा. तो प्लीज पॉज द वीडियो और ट्राई करो. ऑल गुड? ओके, फेयर इनफ. चलो मान लिएगा आपने पॉज कर लिया है, आपने ट्राई कर लिया, और हम लोग इसको साथ में देखते हैं और आप इसको देखोगे कि व्हाट यू हैव डन इज मैचिंग विद व्हाट वी आर डूइंग हियर और नॉट. ये बहुत इसके फायदे हैं. आप ना बहुत सारे ट्राई आपको देना ही पड़ेगा. आप खुद से ट्राई करते रहो तो दैट विल ओपन द न्यू होराइजन ऑफ द थिंकिंग. थॉट प्रोसेस का एक नया डायमेंशन खुलता है और आप ज्यादा सोचते हो, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, और कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में है तो वो एलिमिनेट हो जाता है. बच्चों इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप समझना. ठीक है. एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन. वेल सी, whenever we have this kind of questions and we have the energy involved, work done involved, आपको देखना चाहिए कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन इट. तो बच्चों यहाँ पे 2 तरह के फोर्सेस, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, एंड थर्ड इज अ नॉर्मल रिएक्शन. बट द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट डूइंग एनी वर्क. तो चलो हम लोग थोड़ा सा बच गए हैं, हमको उस डायमेंशंस में नहीं जाना, अपने को वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन को नहीं देखना है. इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई. तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. नाउ इनिशियली इट हैज जीरो एनर्जी.
फाइनली ऑल्सो इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात तो क्लियर है। बट इनिशियली इट हैड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इनिशियल कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के बी स्क्वायर। इतनी बात तो आपको हम समझ पा रहे हैं। Obviously, I know that A is going to be more than B. It means this value, final potential energy, is going to be lesser than the initial potential energy. इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। So final potential energy is going to be initial potential energy. तो एनर्जी गया कहाँ? Where we have lost that energy? ये आपको सोचना चाहिए। तो एनर्जी गया कहाँ? तो now the answer is that energy is dissipated by the friction force. It means वो एनर्जी work done by the friction में चला गया। That energy will be gone in the work done by the friction. Okay, अच्छी बात है। अपने को पता है कि friction is going to be acting upon this in this direction. Friction ऐसा लग रहा होगा। And if I take this as initial position बच्चों, और आपका एक final position हो गया, तो the distance through which the friction was doing work will be equals to how much? A plus B. So this is the distance जहां पे आपका friction काम कर रहा होगा। All good? So can I say that work done by the friction should be equals to how much? आपका friction force हो गया which is mu mg। अगर coefficient of friction mu है तो mu mg, इसका मास वही है, सेम ब्लॉक है तो मास भी m रहेगा। और डिस्टेंस कितना मूव कर गया, a plus b। तो बच्चों दिस इज गोना बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। So from the conservation of energy, the loss in the energy would be dissipated in terms of the frictional force का जो energy है, जो work done है। तो can I say that from here, from the conservation of energy theorem, आपका work energy theorem में लगा देंगे, work energy theorem लगाएंगे यहाँ पे, तो हाफ के स्क्वायर इनिशियल माइनस फाइनल बच्चों आपका है हाफ के बी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, और आपका हो गया बच्चों ए प्लस बी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। Now, the first question said, find the coefficient of friction. I wanted to find the coefficient of friction. Well, that could be easily done now. I believe, half could be taken common और k भी common हो जाएगा. So, we'll be having k a square minus b square and 2 will be here. So, we'll be having 2 times of mg and a plus b. Well, that's going to be the coefficient of kinetic friction. We can actually simplify it further by one step. So that should be how much? K times of a plus b into a minus b. A plus b would be eliminated. So we should be having k into a minus b upon 2 mg. Well, that is going to be the coefficient of friction between the block and the plate. All good? कोई दिक्कत इसमें? I believe आपको इस समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या यूज करा है कि the loss in the potential energy got dissipated in terms of the your work done by the friction. और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, there is nothing else which is going to do the work। अपने को बात दिमाग में आनी चाहिए कि normal is not doing the work। तो कहाँ गया एनर्जी भैया? एनर्जी गया आपका डिसिपेट कर गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी साउंड अपना जो भी हो, बट ओवरऑल बॉटम लाइन इज क्यों फ्रिक्शन ने जो काम किया वो लॉस हो गया। अगर आपने इसका सही करा इसको, वेल गुड, वेरी गुड। हम और भी इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए पार्ट 2 पे आते हैं। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो ध्यान से सोचना, अगर हम if you just go into that कि कितना स्प्रिंग फोर्स लगा, क्या लगा, उस चक्कर में पड़ेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। एक हमारा सिंपल सा थ्योरी है, इस केस में आप देख सकते हो कि द लॉस इन एनर्जी जो बच्चों को हो गया वो तो फ्रिक्शन के कारण हुआ है। बट इतना समझ लें, इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल जो हमारा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों जीरो है, राइट? देन द नेट वर्क डन, कैन आई से दैट net work done, we know that net work done is equals to change in kinetic energy। वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा सकते हैं। यहां पे वर्क किसने किसने किया होगा? वन इज द स्प्रिंग, अदर इज द फ्रिक्शन। इट मींस बच्चों वर्क डन बाय द स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन शुड बी चेंज इन kinetic energy। कितना हो गया? इनिशियली वी हैव जीरो वेलोसिटी, finally also we have zero velocity। It means the change in kinetic energy is going to be zero। Change in the kinetic energy is going to be zero। इतनी बात तो क्लियर है बच्चों, है ना? बहुत अच्छे। Work done by spring अपने को चाहिए। I need the work done by the spring। Can I just say that should be negative of the work done by the friction force? सिंपल सी बात है। और फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करता है? यह मेरे पास ऑलरेडी है। I have already the work done by the friction। इसको आप पुट कर दो, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का कहानी खत्म हो जाएगा, आपका नहीं, सॉरी।
तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग शुड बी हाउ मच? नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, दैट इज नेगेटिव ऑफ म्यू m g a plus b. Well, we can actually substitute the value of mu from here and we'll be getting the answer in terms of m a b and the spring constant k. तो इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं. Well, that should be the work done by the spring should be negative of what is the value of mu? K times of a minus b. चलो इस तरफ आ जाता हूँ. That's going to be k times of a minus b. Down we'll be having 2 times of mg and here we have what? a plus b. बच्चों और कितना हो गया आपका mg है ना, कुछ ज्यादा ही कैंसिल नहीं हो जा रहा है, तो दिस इज गोना बी हाउ मच? mg शुड बी कैंसिल्ड और आपका बच्चों क्या हो गया? माइनस ऑफ k अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आपका तो स्टार्टिंग से समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी हाउ मच? दिस मच. सिंपल सी बात है, कहानी क्लियर है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ. तो इसको लेट मी इरेज. आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है. ठीक है जी. ओके, एक और भी एक अच्छा सवाल है. तो लेट्स से कि लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक एक ऐसा पुली है एंड फ्रॉम दिस साइड ऑफ द पुली वी हैव अ स्प्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक एंड दैट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है और इसका मास इज कैपिटल M. On the other side of this pulley, we have a mass, small mass, which is kept stationary by some external support. अभी ऐसे सिचुएशन में है. You are holding this block. आपने इसको होल्ड कर रखा है ताकि ये फॉल ना करे, अपना नीचे वो ना आए. ठीक है. But now let's suppose spring constant is K. But now you just left it. आपने इसको छोड़ दिया. अब क्या होगा? द ब्लॉक इज गोना कम डाउन और ऐसा सिचुएशन बन जा सकता है कि ये ब्लॉक लिफ्ट कर जाए. इट विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. बट फॉर दैट वी शुड हैव सर्टेन मिनिमम कंडीशन फॉर दिस मास. ऐसा तो नहीं कि हर एक मास इसको लिफ्ट कर देगा, राइट? तो आपने क्वेश्चन क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच द ब्लॉक विल लिफ्ट. मिनिमम वैल्यू ऑफ m so that the block M of mass capital M leave the contact with ground. मतलब just वो contact छूट जाता है, leaves the contact with ground. एक अच्छा वाला ट्राई दो आप लोग इसको, एक गुड इसको स्टिफ चैलेंज दो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है जी. वीडियो पॉज कर दो. सेम स्टोरी, आपने आगे वीडियो नहीं देखना है अंटिल यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट. जब तक आपने उसको पूरा ट्राई नहीं कर लो आप आगे नहीं बढ़ोगे. आपको ऐसे क्वेश्चन जेई में मिल सकते हैं. और गुड, और इसमें 2-3 कंडीशंस और बनता है. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर अप दोस 2 कंडीशंस आल्सो. तो आप इसको अपना पूरा एक अच्छा ट्राई दोगे फिर ही आप वीडियो को अनपॉज करोगे बच्चे. ठीक है, अच्छी बात. चलो मान लीजिए कि आपने इसको ट्राई दे रखा है. बिलीव यू हैव गिवन अ ट्राई ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिफोर आई जंप इनटू दिस क्वेश्चन, मैंने आपसे कुछ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का जरूरत है. मान लो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, जस्ट लीव इट फॉर नाउ. लेट अस सी अ सिचुएशन कि व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन फॉर द ब्लॉक कैन बी लिफ्टेड अप, बाउंस कर जाए, उड़ जाए जमीन से. तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होना चाहिए. देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन दैट. तो हम उस पर पहले चर्चा कर लें, फिर इसको तो हम लोग ऐसे बना लेंगे. ठीक है बच्चों, चलो एक सिचुएशन देखते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूटिलाइज्ड, दैट वुड बी यूज्ड इन सॉल्विंग दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. नॉट जस्ट दिस वन, देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस इन दिस. बहुत सारे वेरिएशंस है. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर अप अ फ्यू ऑफ देम. मान लो कि अपने पास एक देयर इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो हैंगिंग कर रहा है. वी हैड सीन मल्टीपल केसेस इन व्हिच द स्प्रिंग इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वर्टिकल को भी देखते हैं. तो लेट्स सपोज कि वी हैव अ स्प्रिंग और ऐसे कुछ है एंड देयर इज अ मास दैट इज कनेक्टेड टू दिस वन. इसका मास मान लो m, स्प्रिंग कांस्टेंट है k. इनिशियली ये बिल्कुल भी इलोंगेटेड नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है. दिस इज एट इट्स नेचुरल लेंथ. ये बिल्कुल भी अपने नेचुरल लेंथ पे बच्चों. ठीक है, नेचुरल लेंथ, इट इज एट इट्स नेचुरल लेंथ. नाउ सडनली यू लीव दिस ब्लॉक. आपने इसको छोड़ देना है. द मोमेंट यू लीव दिस ब्लॉक, दिस विल बी कमिंग डाउन. एक नीचे थोड़ा आएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, स्ट्रेच होगा. और लेट्स से कि स्प्रिंग का जो सिचुएशन अभी है, द न्यू कंडीशन फॉर द स्प्रिंग इज लाइक दिस. अभी जो स्प्रिंग हमारा बच्चों वो ऐसे हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द
ग्रेविटेशनल पुल और ब्लॉक आ गया आपका यहां पे. सो हियर द ब्लॉक इज. नाउ well, this is the situation which we call as the mean position और बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं इसको. क्यों? क्योंकि द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस mg एंड द स्प्रिंग फोर्स दैट इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड, वो मान लो कि यहां से यहां तक इलोंगेशन जो बच्चों मान लो वो x नॉट हो रखा है. ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर द इलोंगेशन व्हिच हैड हैपेंड इज x नॉट. तो आपको जो फोर्स ऑन द स्प्रिंग लग रहा होगा ऑफ द बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक दैट इज गोना बी kx नॉट. Well, this is that situation when I can write it here. The spring force and the weight should become equal. That is kx naught is equals to mg. Which means this elongation in the spring could be found out as mg upon k. इतनी बात हमको समझ में आ गई. All good? But the point is, इसको आप मेन पोजीशन मान लो. This is your मेन पोजीशन. आपका मेन पोजीशन है बच्चों. Well, the block is not going to stop here. ये रुकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि initially, okay, I know that initially the velocity in the block was zero. इसके पास initial velocity zero था. But at this point of time, it must have gained a certain velocity और ये zero नहीं होगा. Which means it is not going to stop here. It will come down further. और किसी एक ऐसे पॉइंट पे रुकेगा जहां पे स्प्रिंग फोर्स अब बोलेगा नहीं. Because after this point, दिमाग समझना है इसको. After this point, because of this force, एक retardation ऊपर की ओर होगा. बात समझ रहे हो? टिल हियर दिस फोर्स mg वाज मोर देन kx. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टिल दिस पोजीशन mg वाज डेफिनेटली मोर देन kx वेयर x इज लेसर देन x नॉट. टिल दिस पोजीशन mg ज्यादा था तो नीचे की ओर इसको पुल किया जा रहा था. तो देयर वाज अ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट आफ्टर दिस पॉइंट, इसके बाद जो kx नॉट है दिस विल बी मोर देन mg, वो बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि नाउ एक्सपेंशन इज गोना बी मोर. x नॉट का वैल्यू और बढ़ता जाएगा. ए फोर्स ऊपर की ओर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और mg आपका छोटा हो जाएगा उससे. ऑल गुड? तो इस केस में क्या होगा कि आपका फोर्स बढ़ेगा और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, व्हिच मींस वी विल बी हैविंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन का केस हमारे पास आ जाएगा. तो लेट अस से दैट कि ब्लॉक नीचे जाते 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 एक ऐसा सिचुएशन आता है, ब्लॉक द स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड और लेट्स सपोज कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी ब्लॉक रुक गया. Now this is not moving further. Velocity becomes zero. All good because of the retardation, because of the deceleration. तो मान लो कि भैया ये जो पोजीशन है आपका यहां से जहां से हमने स्टार्ट किया था, from where we've started is let's suppose at a h unit or h meter below, है ना. Now again, since the force in this direction is going to be very much high, which is definitely more than mg, this block will now start going upward. फिर क्या होगा? Is it will cross the main position और फिर ऊपर जाएगा. स्प्रिंग will be compressed और स्प्रिंग का एनर्जी बढ़ जाएगा तो वापस इसको पुश कर देगा, जाओ भाई नीचे भागो. तो this will start oscillating, ऊपर नीचे वो ऑसिलेट करना सॉरी हो जाएगा and that will be executing an SHM. मैं आपको SHM टॉपिक जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं. स्टार्ट SHM टॉपिक जस्ट आफ्टर दिस आपको स्टार्ट करता हूं मैं. आप इतना समझ लो अभी कि दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एन एसएचएम मोशन, ऊपर नीचे वो करना चालू हो जाएगा. बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम जस्ट लुकिंग जस्ट बिफोर दिस कंडीशन कि ब्लॉक ऊपर जाने से पहले का जो कंडीशन है हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं. क्योंकि मेरे को क्या चाहिए होता है कि जस्ट द मोमेंट इट लिव्स इट लीव्स द कॉन्टेक्ट, तब उस पर चर्चा करने वाले हैं. इतनी बात तो समझ में आ रही है बच्चों? बहुत अच्छे. तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन. ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है. दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन एंड इवन दिस इज ऑल्सो द एक्सट्रीम. ये आपका सबसे ऊपर का एक्सट्रीम पोजीशन है और आपका सबसे लोएस्ट का एक्सट्रीम पोजीशन है. इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, इस पॉइंट पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज जीरो. Likewise, even at this point also, we'll have the minimum kinetic energy. So at these 2 points, guys, I can say that kinetic energy is going to be zero at these 2 points, and that's going to be maximum at this particular mean position. All good. तो इस पॉइंट का कंडीशन निकालना, मान लो कि अपने को इस एक्सटेंशन को निकालना है. We have to find this extension. फिर से हमारा वर्क एनर्जी थ्योरी काम आएगा. आप ध्यान से देखो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, आपको यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो आप देख रहे हो कि इनिशियली इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में भी इसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी है. बट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटी ने कुछ काम किया इसको यहां से यहां तक लाने में, राइट? और ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है बिकॉज इसका मूवमेंट है दैट इज अलोंग द ग्रेविटेशनल पुल. तो वो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, कहां गया?
वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी कहां गया, कहां गया, ऑब्वियसली कहां जाएगा वो, इसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा। इतनी बात तो अपने को समझ में आ रही है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, आई कैन से दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो वर्क डन यहां पे कितना हो गया, mgh, mgh इज इक्वल्स टू हाउ मच, आपका हो गया हाफ के एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऑल गुड। तो कुछ कदम पिटाई कर लेते हैं यहां पे। तो भैया ये तो हो गया, h विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2mg अपॉन k। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ h। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया मैक्सिमम जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसमें वो किस पॉइंट पे होगा। तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स जो होगा दैट इज गोना बी हियर। सबसे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स आपको इस पॉइंट पे लग रहा होगा। एक लाइन लिख लो, मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स विल बी एट h। जब h पे आएगा स्प्रिंग, h पे ब्लॉक आ जाएगा इस पोजीशन पे, then we'll have the maximum spring force. Now why am I trying to find the maximum spring force? Reason being, मेरे को इस ब्लॉक को लिफ्ट करवाना है। तो ये जो ब्लॉक है और is gonna be having some tension here, और उस टेंशन से स्प्रिंग पुल होगा, और जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा यहां पे that has to be maximum। आपका स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, kx होगा। दिस हैज टू बी मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो इस ब्लॉक को लिफ्ट कर पाएगा, और अपने को उसी मैक्सिमम का कंडीशन निकालना है बच्चों। तो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स आपका एच पे आएगा। तो इफ मैक्सिमम की वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड, इफ मैक्सिमम विल बी हाउ मच, आपका k टाइम्स ऑफ h हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ h, एंड h इज हाउ मच, 2mg अपॉन k। well that's going to be k times of 2mg upon k। तो टिक टिक टिक, which means we have got a condition that for the f maximum that is going to be possible when we have the mass as twice 2m। ये बात समझ में आ रही है आपको कि मैक्सिमम जो स्प्रिंग फोर्स होगा दैट मींस 2mg, उस मास के डबल का वेट के बराबर होगा। क्लियर है? चलो अब देख लो, इस क्वेश्चन में आ जाओ। आई वांट टू लिफ्ट दिस, तो बच्चों मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, मैक्सिमम फोर्स आपका स्प्रिंग फोर्स होगा Fs मैक्सिमम, दैट इज गोना बी 2 टाइम्स ऑफ mg, और दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि जस्ट टू लिफ्ट दिस ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक का आप Fd देख लो, तो अगर इस तरफ आपका स्प्रिंग फोर्स है और mg नीचे की ओर, इसका कैपिटल एम मान लो ना, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम जी नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें इस केस में ऊपर की ओर होगा। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपको दे रहा होगा बाय द कांटेक्ट ऑफ द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, व्हिच मींस द ब्लॉक विल बी लीविंग द सरफेस, वो सरफेस को लीव कर देगा। एट द नॉर्मल रिएक्शन, विद द नॉर्मल रिएक्शन जीरो, फॉर n टू बी जीरो, व्हाट इज द कंडीशन, स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल mg। ये तो कंडीशन है फॉर द नॉर्मल। जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो गया, Fs एंड mg शुड बी इक्वल। आपका मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना है बच्चों, 2mg, well that is going to be 2mg, that should be equals to capital mg, g गया cancel, means m should be equals to capital M by 2। it means the minimum mass of this block should be m by 2 होना चाहिए for it could be able to lift this block upward। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप श्योर कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं ना। लेट अस हैव अ लुक एट द वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा इसको मैं क्लीन कर दूं। आई बिलीव आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे बातों को समझो, और एक एक लाइन को जो मैंने बोला है, सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप उसको नोट कर लेना इन योर नोट्स, ताकि जब आप रिवाइज करो इट शुड नॉट बी लाइक अरे ये कैसे हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को व्हिच आई डिस्कस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, आप उसको नोट करते जाओ, राइट, फॉर यू कैन गेट दोज थिंग्स ड्यूरिंग रिवीजन। आपको ऐसा ना लगे अरे ये क्या हो गया, ठीक है जी। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से, तो ऐसे केस में कुछ भी आपको मास दे दे, आप निकाल लोगे उसका हाफ का मास होगा, तो इजीली द ब्लॉक कुड बी लिफ्टेड अप, है ना। तो ये दो बातें आपको मैंने समझाने का कोशिश किया, अगर आप इसको समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूं। लेट अस से कि भैया एक ब्लॉक है ऑफ मास m,
एंड इज अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है और इसे बड़ा सा ब्लॉक मास m connected over here, m connected over here, and this mass is at a height of h from here. अगर ये हाइट h से ऊपर है, आपको ये बताना है कि व्हाट शुड, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h कि जब ये नीचे फॉल करे, इसको स्ट्राइक करे स्प्रिंग को, स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड और ये मास इससे चिपक जाए. What should be the minimum value of height for which this block M will bounce back? What should be the minimum value of h? Minimum value of h for m bounces back. वो आके टकराता है इससे, ये पिचक जाएगा, फिर ऊपर की ओर उठेगा. For m should bounce back. M should bounce back. Well, this is the homework for you. अच्छे से ट्राई करना. Do not look into any here and there solution. Just apply your concepts. अब पूरा कोशिश करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? तो I'm gonna bring multiple questions on this. कुछ अच्छे क्लासिक क्वेश्चन मैं आपको लिए लेकर आऊंगा. But for now हम इधर ही रुकेंगे और I'm gonna see you in the next video. Till then, keep studying and keep learning, and do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach. ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Take care. Bye.